नमस्कार फ्रेंड्स, श्री रसायन देवो नमः। उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से दोस्तों मैं देवांग प्रजापति आप सभी का मेरी ये यूट्यूब चैनल कि जिसका नाम है देवांग सर केमिस्ट्री के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज रोज बच्चों हम स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम उसमें केमिस्ट्री का चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 5 जिसका वीडियो नंबर 2 देखने जा रहे हैं दोस्तों, कि जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा टॉपिक नंबर 5.1.1। वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन AD एंड AB, एंड टॉपिक नंबर 5.1.2 that is mechanism of AD, that is adsorption. So let us start discussing both this topic in this video. Class 12 English medium chemistry subject physical chemistry का ये टॉपिक है हमारा दोस्तों। चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। उपनिषद साइंस एकेडमी Rajkot and Limkheda, we have two different branches. From there I Devang Prajapati. From last 8 years I am teaching the chemistry subject. Now the topic is distinction. Topic is 5.1.1 and the question is distinction between the adsorption AD and absorption AB. Both are different. If you see the spelling of both this is quite similar, only difference is of AD and AB. So what is the basic difference between both of these phenomena? One is adsorption D वाला and second is absorption B वाला. Okay, so B and D both is different. Okay, so the first one, that is adsorption AD. So what is it? Now before starting the video, the students who are new in this channel, subscribe the channel which is written over here, red color subscribe, and then beside that you will be having the bell icon. Press that also, and in that also you need to select the all option so that you can receive the latest notification of the any videos. So let's get started. The difference between the adsorption and absorption. So what is it? The first one, in adsorption the substance is concentrated only at the surface, does not penetrate through the surface to the bulk of an adsorbent. Means in case of adsorption AD, the substance is concentrated only at the surface. जो एड्सॉर्बेंट होता है उसकी सरफेस के ऊपर सिर्फ एड्सॉर्बेट जो है वो आके रहेंगे, सिर्फ सरफेस के ऊपर ही रहने वाले हैं. ओके, दे आर नॉट पेनिट्रेटिंग. देखो लिखा हुआ है डज नॉट पेनिट्रेट थ्रू द सरफेस. वो सरफेस के डीप में अंदर तक नहीं जाने वाला है. तो ये बात हुई एड्सॉर्प्शन AD वाला, D वाला. While in absorption AB, the substance is uniformly distributed throughout the bulk of the solid. इसके अंदर जो सब्सटेंस आ रहा है वो बहुत अच्छी तरह से यूनिफॉर्मली मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरे सॉलिड की सरफेस के अंदर भी जाएगा. वो यहाँ पे सिर्फ सरफेस के ऊपर रहता है, यहाँ पे अंदर भी एंट्री हो जाएगी, और वो भी कैसी होगी? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है. सो दैट इज व्हाट अबाउट द एब्जॉर्प्शन B वाला.
So this is the basic difference between adsorption and absorption. Okay. Now, for example, when a chalk stick is dipped in a ink, the surface retain the color of the ink. चौक के ऊपर इंक का कलर लगने वाला है ड्यू टू द एडजॉर्प्शन. चौक के सरफेस के ऊपर इंक का कलर लग जाएगा. तो ये जो हुआ वो एग्जाम्पल हुआ एडजॉर्प्शन का. When a chalk stick is dipped in ink, the surface retain the color of the ink due to adsorption of a color. Okay. Whereas in case of absorption B wala, the solvent of the ink goes deeper into the stick, chalk stick मतलब due to the absorption. मतलब कि जो सॉल्यूशन है हमारा इंक का सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन जो चॉक स्टिक है उसके अंदर एंटर हो जाएगा, उसके अंदर डीप में जाने वाला है. ओके. सो दैट इज बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन. सरफेस के ऊपर आ रहा है तो वो हुआ डी वाला एड्जॉर्प्शन, पर अंदर घुस रहा है तो वो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन. सो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ the difference between the adsorption and absorption. Okay. Then another example of it. Okay. One example of chalk stick we have taken. Now another one. On breaking the chalk stick, it is found that the white form inside. A distinction can be made by another example. Okay, that is by using water vapor. By taking water vapor also you can able to differentiate both this term. So water vapors are absorbed by anhydrous calcium chloride. See, this particular point is for this cross one, absorbed by calcium chloride. Okay, so this point will come over here. Okay, and then for adsorption, water vapors are adsorbed by silica gel. So you need to do the cross. Okay, the third point of adsorption will be this one, that is water vapor are adsorbed by silica gel, whereas for absorption third point is this, water vapors are absorbed by anhydrous calcium chloride. Okay. In other words, in adsorption, the concentration of the adsorbate increases only at the surface of adsorbent. Let me say the fourth difference. This already I said you, this point is for absorption, whereas this one is for absorption. Okay, क्रॉस कर देना है. नाउ द फोर्थ डिफरेंस, इन एडजॉर्प्शन द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इंक्रीजेस ओनली एट द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट. मतलब कि सरफेस के ऊपर ही कंसंट्रेशन बढ़ रहा है एडजॉर्बेट का एडजॉर्प्शन में, एडी में. वेरेस इन एब्जॉर्प्शन द कंसंट्रेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क ऑफ अ सॉलिड. सॉलिड के अंदर वो एंटर हो जाएगा और वो भी कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा थ्रू आउट द सब्सटेंस. ओके, सो दिस इज व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द AD, that is adsorption, and AB, that is absorption.
D wala and B wala. Okay. Now the next one, that is the definition of sorption. What is it actually? Let us see that. Both adsorption and absorption, D wala as well as B wala, can take place simultaneously also. दोनों साथ में भी हो सकते हैं. Okay. The term sorption is used to describe both the processes. अगर दोनों प्रोसेस एक साथ में होते हैं, okay, then you can use sorption word. Both adsorption and absorption can take place simultaneously also. एक साथ में भी होती है. पहले सरफेस पे आते हैं, बाद में एंटर होते हैं अंदर. तो उसके लिए एक नया टर्म है जिसको हम बोलते हैं sorption. Okay, which can be used for both. So this is what the definition of sorption. Okay. Now that's all for topic number 5.1.1, that is distinction between the adsorption and absorption. Okay. Now we are going to see the next topic. Okay, that is 5.1.2. Okay. जो बच्चे चैनल में नए हो उनको मैं बताना चाहूँगा बच्चों कि हमारी चैनल के ऊपर आपको बहुत सारे चैप्टर फ्रीली अवेलेबल है, जैसे कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, देन 5th हमारा ऑन गोइंग है, 6 फिनिश है, देन 8 फिनिश है, देन यू विल बी गेटिंग द 10, 11 एंड 15. 15 तो फॉर बोर्ड इट इज डिलीटेड. Okay, but then these many chapters are freely available in our channel. Okay, so you can go and visit the playlist of all these chapters also if you want it. Okay. Next topic is 5.1.2, that is mechanism of adsorption. So let us see that. Adsorption arises due to the fact that the surface particles of the adsorbent are not in the same environment as the particles inside the bulk. मतलब कि जो एडसोर्बेंट का पार्टिकल साइज है, ठीक है, जो मटेरियल के ऊपर एडसॉर्प्शन होने वाला है, समझ लो कि कैटालिस्ट के अंदर का एनवायरनमेंट और बाहर का एनवायरनमेंट, ओके, बोथ विल बी क्वाइट डिफरेंट. दोनों का जो एनवायरनमेंट रहेगा, ओके, विल नॉट बी द सेम, विल बी द डिफरेंट. सो वंस अगेन एडसॉर्प्शन अराइजेस ड्यू टू द fact that the surface particles of the adsorbent are not in the same environment as the particles inside the bulk. सरफेस के ऊपर के जो पार्टिकल रहेंगे उनका एनवायरनमेंट और सरफेस के अंदर के पार्टिकल का एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, डिफरेंट. ओके, देन inside the adsorbent all the forces acting between the particles are mutually balanced. जो सरफेस की अंदर के जो पार्टिकल्स होंगे, ओके, इनसाइड द एडसोर्बेंट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स आर म्यूचुअली बैलेंस. अंदर के पार्टिकल का जो फोर्स रहेगा वो बैलेंस रहेगा म्यूचुअली, ओके. बट ऑन द सरफेस जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर रहते हैं, लेट मी चेंज द कलर सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू बेटर वे. Suppose the particles which are present on the surface, okay, surface, but on the surface the particles are not surrounded by the atoms or the molecules of their all kind on all sides, and hence they possess unbalanced residual attractive force. Okay, so here I can say that the surface particle will be having the
unbalanced force, whereas the central particles will be having the balanced force. Okay. Then these forces of the adsorbent are responsible for the attracting the adsorbate particles. ये जो unbalanced force है, okay, they are going to attract the adsorbate particles, okay, on the surface. The extent of adsorption increases with the increase of the surface area per unit mass of the adsorbent at a given temperature and pressure. प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स रहे सपोज, ओके, आप सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो किसका, एड्सॉर्बेंट का, ओके, तब जाके एड्सॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा. ओके, मीन्स यू कैन राइट इट दैट सरफेस एरिया if you increase, then rate of adsorption will also increase. Okay, यहाँ पे मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों. Suppose you are having the solution of methylene blue in a container. एक कंटेनर है आपके पास, you have methylene blue solution. इसके अंदर पहले आप चारकोल पीस डाल रहे हो, चारकोल का टुकड़ा, ठीक है, तो चारकोल का टुकड़ा आप इसके अंदर डाल रहे हो. ओके, सो इन सच केसेस यहाँ पे क्या होगा कि एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस तो होगा, मिथिलीन ब्लू का सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस तो होगा, पर वो सपोज कि चारकोल पीस डाल रहे हो तो वो समझ लो कि 15 मिनट्स में कलरलेस हो रहा है. ओके, वेयर सपोज पीस के बदले आप चारकोल पाउडर डाल रहे हो तो वो 10 मिनट में ये काम कर देगा कलरलेस वाला. तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपने पाउडर डाला तो एड्सॉर्बेंट जो होता है उसका जो सरफेस एरिया है, ओके, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो ये एड्सॉर्प्शन प्रोसेस भी कैसी होगी, इंक्रीज. ओके, then another important factor featuring the adsorption is the heat of adsorption. This is also an important criteria, okay, for adsorption mechanism. During adsorption there is always a decrease in the residual forces of the surface. That is, there is a decrease in surface energy which appears as a heat. Once again, another important factor featuring the adsorption is the heat of adsorption. During the adsorption there is always decrease in the residual force. Okay, because of that there is a decrease in the surface energy which appears as a heat. Now, adsorption therefore or so is invariably, and make it underline, exothermic process. So it liberates heat energy, okay, during the reaction. In other words, we can say that, दूसरे वर्ड्स में हम बोलेंगे delta H, that is change in enthalpy of adsorption, is always negative. Okay, so reaction अगर अपने आप होनी है तो डेल्टा एच कैसा चाहिए, नेगेटिव. ओके,
व्हेन अ गैस इज एब्जॉर्ब, सो यहाँ पे ये चीज ध्यान में रख लेनी है आपको, डेल्टा एच ऑलवेज मस्ट बी नेगेटिव so that the reaction will be the exothermic. Okay, now when a gas is adsorbed, the freedom of movement of its molecules become restricted. पार्टिकल जो है वो तो अभी एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर आ गए हैं. ओके, तो उनका जो पहले फ्रीडम था पार्टिकल गैसेस का, जो यहाँ वहाँ घूम रहे थे, वो बंद हो जाएगा. Okay, these amounts to decrease in the entropy of the gas after the adsorption. इसकी वजह से क्या होगा, एंट्रोपी जो है, रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम जिसको हम एंट्रोपी बोलते हैं, जिसका सिंबल डेल्टा एस है, वो भी कैसा रहेगा, नेगेटिव. ओके, सो डेल्टा एस की वैल्यू भी कैसी रहेगी, नेगेटिव. एंथैल्पी एज वेल एज एंट्रोपी, ये दोनों की वैल्यू नेगेटिव चाहिए. ओके, नाउ फॉर अ प्रोसेस टू बी ए स्पॉन्टेनियस, यानी अपने आप, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, कोई भी रिएक्शन अपने आप हो, उसके लिए थर्मोडायनेमिक रिक्वायरमेंट क्या है, एट कांस्टेंट, सबसे पहले टेम्परेचर कांस्टेंट चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट चाहिए, डेल्टा जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी. तो गिब्स की जो एनर्जी है मस्ट बी ऑलवेज नेगेटिव, वो भी कैसी चाहिए, नेगेटिव. देयर इज अ डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी, तब जाके रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने वाला है. ओके, now on the basis of this equation, that is delta G is equal to delta H minus T delta S. Now here okay, delta G that is Gibbs free energy. देखो ये सब तो हमें पता है, डेल्टा G जो है वो गिब्स एनर्जी, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, टी टेम्परेचर, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज. ओके, तो ये सब टर्मिनोलॉजी तो हमें पता है. ओके, सो डेल्टा जी कैन बी नेगेटिव. कब नेगेटिव होगी, डेल्टा एच दैट इज एंथैल्पी चेंज has sufficiently high negative value. कैसी रह गई, ओके, ये सफिशिएंटली हाई नेगेटिव रहेगा. ओके, whereas माइनस टी डेल्टा एस, ये पीछे वाला जो पूरा टर्म है, ओके, इज पॉजिटिव. ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव. ओके, सो टी डेल्टा एस जो है, ठीक है, कैसे ये पॉजिटिव आएगा, देखो डेल्टा एस कैसा है हमारा, नेगेटिव. ठीक है, नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव. ठीक है, तो ये पीछे वाला जो पूरा टर्मिनोलॉजी है, माइनस टी डेल्टा एस विल बी दी पॉजिटिव. और डेल्टा एच जो है सफिशिएंटली हाई नेगेटिव, वो ज्यादा नेगेटिव होगा, तब जाके डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव. मतलब कि रिएक्शन जो है वो अपने आप होने वाला है, कैसा, okay, spontaneous. Okay, now thus in an adsorption process which is spontaneous, मतलब कि अपने आप हो रही है, a combination of these two factors makes
डेल्टा जी नेगेटिव। कौन से 2 फैक्टर्स? तो मैंने आपको बोले माइनस टी डेल्टा एस की जो वैल्यू है, ठीक है, वो पॉजिटिव हो जाए और डेल्टा जी डेल्टा एच जो है, ठीक है, वो सफिशिएंटली हाई नेगेटिव हो, तब जाके डेल्टा जी आपको नेगेटिव मिल सकती है और रिएक्शन अपने आप होने वाली है। ओके, एज द एड्सॉर्प्शन, ये तो हमारी बात हो गई, रिपीट हुआ है। अभी देखो यहाँ पे एज द एड्सॉर्प्शन प्रोसीड्स डेल्टा एच, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, जैसे जैसे रिएक्शन जा रहा है, आगे हो रहा है, ओके, डेल्टा एच जो है बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव। ये क्या होगी? लेस एंड लेस नेगेटिव। ओके, अल्टीमेटली डेल्टा एच बिकम्स इक्वल टू, देखो पीछे वाले टर्मिनोलॉजी में कोई चेंज नहीं है भाई। ओके, तो ये तो क्या था? डेल्टा एच नेगेटिव था भाई, ये नेगेटिव, तो उसकी वजह से पूरा जो टी डेल्टा एस है उसका आंसर हमें कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। ठीक है, समझ लो कि ये -25 है और ये पहले कितना था? पहले तो बहुत ज्यादा था, 50 था, माइनस नहीं, ये 25 प्लस हो जाएगा। ओके, ये -50 था पहले, पर कम होके 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 वो समझ लो कि -25 तक आ गया, लेस एंड लेस नेगेटिव होके। ठीक है, तो -25 + 25 आप करो तो कितना आएगा आंसर? डेल्टा जी आपका क्या हो जाएगा? 0। ओके, बिकम्स 0। एट दिस स्टेट हम बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन है, ठीक है, वो कॉस कैसी होगी? एट दिस स्टेट वी कैन से दैट द रिएक्शन विल बी एट द इक्विलिब्रियम। उन्होंने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। ठीक है, तो रिएक्शन समझ लो कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो तो रिएक्शन विल बी द स्पॉन्टेनियस। ओके, देखो इतना आप याद रख सकते हो, नेगेटिव, स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस, 0, इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये लिख लेना अपनी बुक में। वैसे थर्मोडायनेमिक्स में 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आप ये सब पढ़े हो। ठीक है, वही रिपीट हो रहा है, अगर वहां से आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वरना ये लिख लेना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे till 5.1.2, that is mechanism of adsorption. Okay, now in next video we are going to see about the topic that is not this 5.1.3. okay, that is types of adsorption. okay, adsorption क्या है, उनके types के बारे में देखेंगे। okay, into the detail, 2 types है, ये नहीं देखेंगे, ये तो बाद में। so 5.1.3, okay, the types of adsorption, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, तो वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, जो बच्चे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। दूसरी बात, अपनी टेलीग्राम चैनल भी है, उसके अंदर भी आप ज्वाइन हो सकते हो। ओके, टेलीग्राम के अंदर कैपिटल ब्लॉक लेटर में देवांग सर केमिस्ट्री लिखोगे तो भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर वहां से नहीं मिल रहा है तो ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। ओके, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, बाय।